Hello everyone, welcome to CGP Mentors platform. So in today's session, we are going to discuss free sources for RBI Grade B preparation. With the help of these sources, you can definitely clear this exam. But yes, thoda sa effort zyada lagega, but still you guys can definitely do. So let's start our today's session, everyone. So for finance, finance is the pain point for each and every aspirant, right, everyone? But finance में क्या है कि there are a few topics जो ज़्यादा important है आपके exam के लिए, which can easily be covered with the help of Institute of Chartered Accountants of India, that is ICAI website. See, money market, capital market, primary market, secondary, bond, derivative, then commodity, then mutual funds. A lot of important topics of your syllabus can easily be covered with the help of ICAI website. ठीक है, so जाना इस website पे अच्छे से explore करना. You will find a lot of things that are very important for your exam. प्राइमरी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, हर मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, हर साल इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं. सो इफ यू वांट टू कवर दीज थिंग्स कॉम्प्रिहेंसिवली देन दिस इज द बेस्ट वेबसाइट. एंड सच्चाई तो ये भी है कि ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूट ने यही से ही अपना कंटेंट प्रिपेयर किया होगा. सो आप लोग यहाँ से जाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए, देन इट्स गुड टू गो. यू डोंट नीड टू ज्वाइन every time, you don't need to join a coaching. ठीक है, you can prepare on your own. Yes, it is going to be थोड़ा सा difficult होगा, you have to put more efforts, but जैसे मैंने बोला आप लोग आराम से कर लोगे. So next, the most important website is सेबी की बाद में देखेंगे, पर पहले आरबीआई की वेबसाइट. आरबीआई की वेबसाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कवर. ठीक है, functions of Reserve Bank of India, ठीक है, then evolution of monetary policy, everything is going to be covered with the help of RBI website. Very important thing to do everyone. RBI के website बहुत जरूरी है. RBI के website को बहुत अच्छे से explore करोगे, you will find a lot of things. Okay, जो regular notifications उनकी आती हैं, press release आता है, then we have publications तो आपके लिए देखा जाए तो और important है. Publications में you will get everyone. Publications में you will get the annual, half yearly, quarterly reports of Reserve Bank of India. And Reserve Bank की 3 report, FSR report, RBI की annual report, then trends and progress of banking, and yes, one more report, that is currency and finance report. Very important for your exam. Everything you will get here in publication section. Okay, so जो RBI की website है बहुत जरूरी है. उसके साथ अगर आप facts cover कर लेंगे, ठीक है, एंड फैक्ट्स किसके अंदर, जैसे रिटेल डायरेक्ट बैंक स्कीम होगी, आरबीआई बैंक टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, देन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, a lot of things are there everyone. So if you gonna cover RBI website comprehensively, then trust me, आपका finance वाला टेंशन बहुत कम हो सकता है. Yes, it is going to take more efforts, but yes, आप लोग आराम से मैनेज कर सकते हैं. Then we have ओके, मैं आपको सेबी की वेबसाइट भी दिखा देती हूँ. देखो, सेबी की वेबसाइट में हमें ज्यादा नहीं जाना है, जस्ट मोटी चीजें पढ़नी होंगी आपको सेबी की वेबसाइट से. ओके, सो यू कैन रेफर दिस वेबसाइट फॉर स्पेसिफिकली फॉर सेबी सर्कुलर्स, बिकॉज एट द एंड अगर आप हम आरबीआई एग्जाम के बारे में बात करें, सो सेबी के बहुत बेसिक डिटेल्स ही पूछी जाती है. ज्यादा क्या पूछा जाता है? Questions from the SEBI circular. So if you want to cover SEBI circulars comprehensively, then you should go to this particular website of SEBI, that is SEBI की website. Okay, now ये हो गया हमारा फिनेंस के लिए, राइट एवरीवन. अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट, द मोस्ट इजीएस्ट, द मोस्ट स्कोरिंग एंड द मोस्ट इग्नोर्ड आल्सो. मैनेजमेंट बहुत आसान है, आप लोग आराम से जितनी फ्रीली अवेलेबल रिसोर्सेज है वहां से कर सकते हैं. आई हैव 2 वेबसाइट्स फॉर यू ऑल एवरीवन. सो फर्स्ट इज व्हाट इज humanresource.com. व्हाट इज humanresource.com? नाउ सी, यहाँ पे साफ मेंशन है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हियर जॉब एनालिसिस, एटसेट्रा. So a lot of things are already mentioned here. Just go to this particular website and you will have each and everything that is mentioned in your syllabus. So पहले हम syllabus पकड़ेंगे, उसके बाद इन websites पे जाएंगे. Then आपको क्या करना है, देखो पूरी website को comprehensively cover नहीं करना है. Pick the website, see your syllabus, then syllabus के हिसाब से जो वहाँ पे mention है वहाँ से comprehensively cover करो. Okay? Then for management there is one more website जिसकी आप हेल्प ले सकते हैं, दैट इज मैनेजमेंट स्टडी गाइड. मैनेजमेंट स्टडी गाइड यू कैन रेफर फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड आई थिंक एथिक्स वाला जो पार्ट है, इट इज ऑल्सो कवर्ड इन दीज वेबसाइट्स ओनली. ओके, देन देयर इज वन मोर वेबसाइट विद द नेम ऑफ I educate or I study not, something like this. So you can go to that website also. But ज्यादा अच्छी कौन सी है? ज्यादा अच्छी है हमारी ये वाली, what is humanresource.com. So freely available. Go to this website. You will get each and every topic of your management syllabus. Okay. Then we have for economics. Now see, economics का कैसा सीन क्या है? Management में obviously a lot of questions. आपका 50-60% पेपर जो FM का होता है, it is all about management.
वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंस में जो 40% होता है, स्टैटिक से थोड़ी बहुत चीजें आती है, स्टैटिक आपको आना चाहिए। उसके साथ साथ क्या चाहिए होता है हमें एवरीवन, स्टैटिक के साथ साथ आपको अच्छे से सर्कुलर्स वगैरह पढ़ने चाहिए, जो हम आरबीआई की वेबसाइट से कवर करेंगे, सेबी की वेबसाइट से कवर करेंगे, राइट। नाउ फॉर इकोनॉमिक्स, अब इकोनॉमिक्स में क्या है, सिर्फ आपको बेसिक्स आना जरूरी है। 5 बेसिक्स आना जरूरी है एवरीवन, बिकॉज बिना बेसिक्स के न्यूज नहीं समझ पाओगे। बट क्या एग्जाम में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिक से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। So just to have good understanding of economics or various or the just to understand the basic concepts of economics, you can refer NCERT. You can refer NCERT class 11th and 12th, where you will have this Indian economic development, macroeconomics, microeconomics, read everything. ठीक है। सो जो अपनी 10th और 12th 11th और 12th की जो अपनी एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की, वहां से जाके पढ़ लेंगे। ओके, देन इकोनॉमिक्स एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, सो to cover comprehensively economic survey and budget, you can definitely refer India budget website. You can definitely refer India budget website. Okay everyone, क्या रेफर करना है, इंडिया बजट वेबसाइट रेफर करना है आप लोगों को। ओके, सो फॉर इकोनॉमिक्स, to read the basic concepts, refer NCERT, and yes, to do your economic survey and इंडिया बजट कॉम्प्रिहेंसिवली, यू शुड रेफर इंडिया बजट वेबसाइट, वेरी गुड वेबसाइट। यहाँ पे आपको हाईलाइट्स भी मिल जाएंगे। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं कवर कर सकते तो हाईलाइट्स कर लोगे, उससे भी काम चल जाएगा। ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट, हाँ, सबसे ज्यादा पेन पॉइंट है लोगों का करंट अफेयर्स। सबको समझ आता है करंट अफेयर्स कहाँ से करें, है ना। सो करंट अफेयर्स के लिए देखिए सबसे बेस्ट सोर्स है, अच्छा, जब हम सर्कुलर्स की बात करते हैं, सो सर्कुलर्स आपने ऑलरेडी कवर कर लिए होंगे आरबीआई की वेबसाइट से एंड सेबी की वेबसाइट से, तो वहां से हमारा फाइनेंस करंट अफेयर्स का काफी हद तक हो गया, राइट। नाउ व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट वी नीड टू डू एवरीवन। सो फॉर करंट अफेयर्स, the best source, the most important source is PIB, that is Press Information Bureau website. So this is the website, this is the best website. You will get each and every important update about the various government schemes और what are the new initiatives of the government of India, तो वो सारी चीजें मिलेंगी आपको पीआईबी में। सो यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है, पीआईबी सर्च करो, पीआईबी सर्च में जाओगे, फिर आपको प्रेस रिलीज में जाके जब यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर आपको ऑल रिलीजेस में जाना होगा। ऑल रिलीजेस पे आओगे, सो दे हैव सेग्रीगेटेड डे वाइज न्यूज, सो इट्स अ गुड थिंग, राइट। ईयर मेंशन करो, कौन सा मंथ का चाहिए, कौन सा डेट का चाहिए, यू विल गेट अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स, देन रीड दोस आर्टिकल्स, देखो कौन सा आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, जो रेलेवेंट हो उसे पढ़ना, बाकी छोड़ देना। ओके, नाउ देन वी हैव ओके, अब हम जो पीआईबी की बात करी, पीआईबी इज इंपॉर्टेंट टू कवर गवर्नमेंट स्कीम अपडेट्स, राइट। पीआईबी इज इंपॉर्टेंट टू कवर व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग ऑन अ डेली बेसिस, राइट। बट जो हमारी दूसरी न्यूज होती है, इंटरनेशनल न्यूज होती है, नेशनल न्यूज होती है, क्योंकि पीआईबी में सारी न्यूज तो कवर नहीं होगी, राइट। देयर आर अ लॉट ऑफ वन मार्कर काइंड ऑफ न्यूज आल्सो, राइट। सो वो सारी न्यूज हम कहाँ से कवर करेंगे, जो न्यूज़पेपर टाइप सी होती है, स्पोर्ट्स की होती है, इंटरनेशनल न्यूज हो रही है, वो सारी चीजें कहाँ से कवर करोगे, दैट यू कैन इजीली कवर फ्रॉम newsonair.com. That is news on air. So you can refer news on air website everyone to read the phase 1 kind of news hota hai, jo sports, national, international, awards, obituary, everything can easily be covered with the help of news on air website. ओके एवरीवन, सो देखियो यहाँ पे इन्होंने भी कितने अच्छे से कैटेगरी दिया हुआ है, यहाँ से जाना है, डेली बेसिस पर न्यूज पढ़ते रहना है, हो जाएगा आपका काम। जैसे अभी सारी, जैसे रीजनल न्यूज है, रीजनल न्यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो यू कैन लीव दिस सेक्शन। इलेक्शंस नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू कैन लीव दिस सेक्शन। बिजनेस में अगर कुछ भी इन्होंने आरबीआई से रिलेटेड कुछ बात करी, देन सी, अदरवाइज इग्नोर। ओके, एंड अगर कुछ भी इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कुछ भी इन्होंने एक आर्टिकल दे रखा है तो वो पढ़ लो, नहीं तो आप इग्नोर कर सकते हो। देन नेशनल न्यूज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट है, लॉट ऑफ अदर कैटेगरीज आर आल्सो देयर, बट स्टिल हम इसमें से इतना ही ला सकते थे। बट येस, न्यूज ऑन एयर इज द बेस्ट वेबसाइट टू कवर योर फेज 1 काइंड ऑफ जीए। पीआईबी कवर इसलिए करना होता है बिकॉज दैट विल हेल्प यू both for phase 1 and for phase 2. But yes, for phase 1 specific news like national, international, sports, obituary, MOUs, etc., everything can easily be covered with the help of news on air. ओके, नाउ अब क्या होता है कि आप लोग खुद से पढ़ेंगे, पढ़ ही लेंगे, है ना। बट यस, अगर कुछ फ्रीली ऐसे आपको वीडियोस चाहिए, आपको समझना हो, राइट, सो वी ऑल आर कवरिंग एवरीथिंग ऑन यूट्यूब ऑल्सो। सो यहाँ पे यस, वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू पीडीएफ, बट यस, वीडियोज आर ऑलरेडी अवेलेबल। सो जैसे पीआईबी भी करते हैं, डेली फाइनेंस, बैंकिंग, करंट अफेयर्स भी होता है, जो भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी रेलेवेंट चीजें होती है, एवरीथिंग इज कवर्ड ऑन आवर प्लेटफॉर्म, सो यू कैन ज्वाइन आवर प्लेटफॉर्म ऑल्सो। ओके, बिकॉज देखो, so finally we have launched RBI Grade 2 2026 course
फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू सारी प्रिपरेशन इंक्लूडेड है। एंड अगर कूपन कोड की बात करें तो इंडिविजुअल कोर्स के लिए, यानी कि अगर आप सिर्फ आरबीआई का कोर्स ले रहे हैं, देन द कूपन कोड इज अवेलेबल CGP25, यू विल गेट 25% डिस्काउंट। एंड येस, फॉर बंडल कोर्सेज द कूपन बंडल का मतलब ये हो गया कि जैसे आपने आरबीआई से कोई और कोर्स भी लिया, सपोज नबार्ड का लिया या IRDAI का लिया, राइट? सो इन दैट केस द कूपन कोड इज XMS40। ओके, सो these कूपन कोड्स आर अवेलेबल, फ्री सोर्सेज से पढ़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? बाकी यूट्यूब पे फ्रीली वीडियो सारी अवेलेबल है, यू गाइज कैन जॉइन अस, ओके? बट यस, अगर कभी लगे कि यू गाइज नीड आवर हेल्प, देन वी ऑल आर हियर फॉर यू ऑल, ओके? ऑल द बेस्ट एंड ऑलवेज रिमेंबर, सब बहुत अच्छा होगा, जस्ट ट्रस्ट दिस थिंग, यू विल गेट द बेस्ट थिंग्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।